Student, this question came in HTET exam held on Saturday, 3rd December, related with semiconductor electronics. First question I read: if surface current density is 30 microampere per centimeter square and current density is 2 ampere per centimeter square and little e divided by kT. kT is thermal energy, K suffix B. K suffix B को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. kT, thermal energy is everywhere. Thermal energy is because of temperature. Little e is basic charge, minimum charge, least charge, fundamental charge. And its value is given to me 46.06 volt minus 1. Question is, value of applied forward voltage for PN junction diode will be nearly. I am to justify third option. आप सब जानते हैं आइडियल डायोड इक्वेशन इज I इज इक्वल टू I सफिक्स एस एक्सपोनेंशियल लिटिल ई कैपिटल V डिवाइडेड बाय ईटा KBT माइनस 1. K suffix B is Boltzmann constant. Value of Boltzmann constant is 1.38 into 10 power minus 23 joule per Kelvin. And V suffix T is KBT divided by little e. This is known as thermal voltage or volt equivalent of temperature. So simplify, and you know this eta is a recombination utility factor which is 2 for silicon diode but 1 for germanium diode. अब कैसे पता चले कि गिवन क्वेश्चन में डायोड तो मेंशन नहीं है लेकिन वैल्यू ऑफ जे सफिक्स एस से हम अंदाजा लगाएंगे कि ये डायोड किस मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि reverse saturation current density is of order of microampere. When reverse saturation current density is of order of microampere, then it is germanium diode, and when it is of nanoampere, then it is silicon diode. You know, reverse saturation current का दूसरा नाम है लीकेज करंट विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट, और इसकी वैल्यू डबल हो जाती है फॉर ईच एंड एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर. That's why silicon diode is preferred to germanium diode. Reason being, silicon diode में leakage current is very less of order of nanoampere. पर यहाँ पे जो leakage current density है, this is of order of microampere. So germanium में leakage current ज़्यादा होता है. So therefore अगर ऊपर भी एरिया से डिवाइड करो, नीचे भी एरिया से डिवाइड करो, तो ये करंट डेंसिटी बन जाएंगे. कैपिटल V को मैंने V सफिक्स D कह दिया, डायोड वोल्टेज, और J सफिक्स F हमें ये दिया हुआ 2 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. माइक्रो एम्पियर को मैंने एम्पियर बना लिया, और ये 1 जो है इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल लिटिल ई कैपिटल V सफिक्स G और KBT. ईटा की जगह 1 लिख दिया क्योंकि जर्मेनियम डायोड है, और लिटिल ई और KBT की वैल्यू 46.06, और ये V सफिक्स D. सिंप्लीफिकेशन ये आ गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. नेचुरल मैंने बेस लिया E, log 2 to the base E प्लस log of 10 to power 5 to the base E, यानी, और ये माइनस log 3 to the base E. आप जानते हैं ये मैंने प्रोडक्ट फार्मूला और क्वेश्चन फार्मूला दोनों लगा दिए, और यहाँ पे पावर फार्मूला 40 log 46 log E raised to power 46.06 VT to the base E, ये बाहर आ गया, पावर बाहर आ गई. log E to the base E, जब ये सेम है तो ये 1 होता है, और बेस E को जब बेस 10 में बदलते हैं तो साथ में 2.303. इसी प्रकार यहाँ पे, और ये मैंने वैल्यू अलग से भी बताई है, log 10 to power 5 to the base E की वैल्यू 5 into 2.303. आप कैसे कहेंगे, देखिए ये फॉर्मूला होता है log B to the base E equal to log B over log A, या फिर log A to the base E is log A over log B. और यहाँ पे बेस हिडन है, कुछ भी नहीं लगाया, तो ये बेस 10 नहीं होता है. वैसे तो जो ऊपर बेस होना चाहिए वही नीचे बेस होना चाहिए. अगर log A to the base 10 है तो नीचे भी log B to the base 10 है. अगर log A to the base E है तो नीचे भी log B to the base E है, पर मुझे तो 10 से कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने बेस 10 लगाया. log A to the base 10, log B to the base 10. So let us find value of log 10 to power 5 to the base E. कैसे करेंगे log 10 to power 5 to the base E? बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाया, log A to the base E log A और log B.
यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, यानी log 10 to the power 5 और log e। फिर मैंने जैसे कि आपको कहा क्योंकि बेस हिडन है, कुछ भी नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं लगाया तो यहाँ बेस 10 नहीं है, यानी log 10 to the power 5 to the base 10 log e to the base 10। सो दिस इज इक्वल टू, ये बाहर आ गई पावर log m रेज टू पर n log m, यानी 5 log 10 to the base 10, और ये 1 डिवाइडेड बाई log e to the base 10, ये ऊपर चला जाएगा तो log 10 to the base e। एंड यू नो log 10 to the base e की वैल्यू जो होती है 2.303, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू ये लिख दी 2.303। आई हैव टेकन कॉमन एंड नाउ log 2 to the base 10 की वैल्यू, log 3 to the base 10 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। सिंप्लीफिकेशन गिव राइज टू डायोड वोल्टेज, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस पी एन जंक्शन डायोड। वोल्टेज के साथ वर्ड हमेशा अक्रॉस रहता है, करंट थ्रू डायोड होता है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड हमारे पास इतने वोल्ट आ गए, तो आंसर इज थर्ड। एक और क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट में आया था, डेट इज रिलेटेड विद ट्रांजिस्टर करंट गेन अल्फा ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज 0.98। इट गिव्स द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ 12 माइक्रोएम्पियर फॉर एन एमीटर करंट ऑफ 2 मिलीएम्पियर। वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट आर रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ exact expression for output current? Exact expression for output current in common base transistor is IC equal to alpha IE plus ICBO। अल्फा आप जानते हैं करंट गेन फॉर ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस, आई सफिक्स CBO को बोलते हैं। ये करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट है कॉमन बेस का, यानी करंट कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन, और ये हमेशा माइक्रो एम्पियर में होता है। तो अल्फा की वैल्यू IE की वैल्यू हमें दी हुई है, ICBO भी हमें दिया हुआ है, तो ये IC आ गया इतने मिली एम्पियर। अब हम सब जानते हैं कोई भी ट्रांजिस्टर की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे ट्रांजिस्टर NPN हो या PNP हो, चाहे कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस हो, कॉमन एमीटर हो, कॉमन कलेक्टर हो, ये फार्मूला यूनिवर्सल है, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। IC सोल्व किया, IE इज गिवन टू मी, तो IB सोल्व करके कितने मिली एम्पियर, यानी माइक्रो एम्पियर बनाना तो 1000 से डिवाइड किया। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, बीटा इज अल्फा और 1 माइनस अल्फा। आप जानते हैं बीटा इज करंट गेन फॉर ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा इज गिवन टू मी, तो एक बीटा आ गया, और बीटा हमेशा 1 से ज्यादा होता है और अल्फा 1 से कम होता है, यानी कॉमन बेस में अल्फा 1 से कम, यानी कॉमन बेस में करंट गेन नहीं मिलती लेकिन वोल्टेज गेन मिलती है। कॉमन एमीटर में करंट गेन मिल रही है बीटा, और कॉमन एमीटर में करंट गेन भी मिलती है, वोल्टेज गेन भी मिलती है, दोनों गेन मिलती है। लेकिन मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज के बता दूं, कॉमन कलेक्टर एक कॉन्फ़िगरेशन, एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसका दूसरा नाम है एमीटर फॉलोअर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन तो मिलती है लेकिन वोल्टेज गेन नहीं मिलती। लेकिन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सारी गेन मिलती है, इसीलिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज द सुपर्ब कॉन्फ़िगरेशन, इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। Why? Because power gain of common emitter configuration is the highest। अब ये इसी तरीके, जिस तरीके से ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसी तरीके से व्हाट इज एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट करंट इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन? इट इज IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस I सफिक्स CEO, जिसकी वैल्यू होती है बीटा प्लस 1 इंटू ICBO। तो ICEO is leakage current in common emitter configuration, and leakage current in common emitter configuration is larger than leakage current in common base configuration। यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कॉमन emitter की, कि कॉमन emitter में लीकेज करंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉमन बेस, लेकिन खूबी इसकी यह है कि हाईएस्ट पावर गेन है। तो IC की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, बीटा अभी मैंने वर्कआउट किया, IB आई एम टू वर्कआउट बीटा 49 और ये 1 ऐड किया 50, और ICBO इज गिवन टू मी, ICBO is given to me 12 माइक्रोएम्पियर। सिंपली इसको माइक्रोएम्पियर के मिली एम्पियर बना लिया, 1000 से डिवाइड किया, कैलकुलेशन गिव राइज टू आंसर सेम ही आएगा। तो सच एक होता है, सच कायम दायम है, जितने मर्जी मेथड्स करिए आंसर विल रिमेन द सेम। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।